A very good morning, students. I hope you all are very healthy and very happy at your homes because this is a time of the quarantine days are going on. This is a very pandemic situation, so we have to stay in our home, but we have to stay healthy and be happy. And I'm really happy that you are watching my videos, and really I'm happy too because the number of likes and the comments are coming up from your side, and even the views are increasing. So I'm really happy that I'm feeling appreciated by your side that you all are watching my videos. Okay, now coming to the point, the next chapter in your maths class 4th is the way the world looks. This chapter is not about solving questions, but it is about description, or a describing thing, or I can say a point of view to show the childrens about how a thing looks from different angles. Means if we see anything from a different side, then the view of that thing is different. From another side, that view is different. The thing is that the chapter is trying to show you the shape, the faces, the angles, and the directions, like the left side, what is a left side, what is a right side, what is upside, what is downside, or when you try to see a thing from sidewards, then what the shape of that object. If you're trying to see that thing from upwards or from the below, then this chapter is mainly trying to show these things. Means the chapter is all about the shape, it is all about the view of anything. And the chapter is also saying the way the world looks. Means कौन सी चीज़ या वर्ड हमें कब कैसा दिखता है जब आप उसको कहाँ से देखना, किस तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं. नाउ इट इज़ अबाउट माउस हुज नेम इज़ गप्पू. उसकी एक एयर जर्नी है, उसके बारे में ये चैप्टर बताया गया है. उसको उसकी स्टोरी से रिलेट करते हुए आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं. नाउ जस्ट कमिंग टू द पॉइंट. नाउ Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. मतलब बेटा गप्पू एक चूहा है जो कि घर में रहता है. वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो बैलून से खेल रहे थे, और जो बैलून है वो उड़ता हुआ दिखा, तो वो बहुत एक्साइट हो गया कि भाई ये क्या भला है. तो नेक्स्ट डे उसको आइडिया आया. जब वो बच्चे चले गए, स्कूल चले गए, तो उसने उस बैलून का जो धागा था उसको पकड़ा और उड़ने लगा. जब वो उड़ के ऊपर गया, रूफ टॉप मतलब छत तक पहुंचा, तो उसने जो छत पे पंखा है बेटा, अब पंखा आपको नीचे से दिखता है क्या, उसका ऊपर का आपको दिखता है कि ऊपर की जो ब्लेड्स हैं, या फिर मतलब ब्लेड मतलब जो पंखे की पंखड़ी होती है उसको हम ब्लेड्स कहते हैं, क्या उसकी शेप आपको नीचे से तो दिखती है, बट क्या ऊपर से आपने कभी देखा कि वो कैसा लगता है? नहीं देखा. जब कभी पंखा घर पे न्यू लगा होगा, या फिर जब वो कभी ख़राब होता है तभी देखने को मिलता है, वरना आपको देखने को नहीं मिलता. बिकॉज आप उसको कहाँ से देखते हो? नीचे से देखते हो. नीचे से देखने में व्यू कैसा होगा? डेफिनेटली डिफरेंट होगा. ऊपर से देखते तो व्यू डिफरेंट होगा. तो पहली बार गप्पू ने भी जब पंखे को देखा तो वो भी काफ़ी अमेज हुआ. गप्पू बोल क्या रहा है? ओ देयर इज़ सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. भाई मम्मी तो पंखा साफ़ कर देती हैं, लेकिन क्या ऊपर भी साफ़ कर पाती हैं? नहीं, क्योंकि बेटा हमारा जो पंखा होता है वो बहुत ऊपर लगा होता है. गप्पू लुक डाउन. ही कुड सी द बेड, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. जब गप्पू ऊपर पहुंचा तो देखिए ये जो घर है उसकी चीज़ें उसको कैसे दिखना स्टार्ट होती हैं. ऊपर से देखो, जब आप चेयर को देखोगे तो वो ऐसी दिखेगी, बेड ऐसा दिखेगा, जो टेबल है वो ऐसा दिखेगा. सब चीज़ों का जो बेटा व्यू है वो चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि अब आप उसको साइड से नहीं देख रहे हो. अब आपने बेड कहाँ से देखा? ऊपर से देखना स्टार्ट किया. तो बेड, चेयर, टेबल, ये सब चीज़ें आपको ऐसे दिखने वाली हैं. That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it kept on the top of the jug. मतलब एक चूहिया और है जिसका नाम चिंकी है, वो चीज़ ढूंढना चाह रही है, लेकिन उसको चीज़ क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज ऑफ द व्यू ऑफ चिंकी. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज जैसे मान लो कि इस पे ये एक जग है सपोज, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? सपोज इसमें चीज़ रखा हुआ है, और आपकी हाइट बहुत छोटी है, और आप इसको यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, तो क्या आपको इसके अंदर का रखा हुआ चीज़ दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखने वाला. क्यों? क्योंकि बेटा आपका
व्यू कहाँ से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो। बट अगर जैसे आप ऊपर से इधर से आके देखोगे, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे होगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर व्यू। आप किसी चीज़ को कहाँ से देख रहे हो वो मैटर करता है कि उसका आपको शेप या उसके अंदर की चीज़ या वो आपको कैसे दिखने वाली है। Can you think why Gappu see the cheese on the jug but Chinky could not? मतलब वहीं कि गप्पू क्यों देख ले रहा है, बिकॉज बेटा वो ऊपर से देख रहा है इसलिए उसको देख ले रहा है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम, बट एक हवा आई और जो बलून के संग जो गप्पू है वो बाहर चला गया है घर के। द बलून फ्लू अप एंड Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. जब वो हवा से बाहर चला गया और ऊपर घर से ऊपर उड़ गया, तब उसने जाके क्या देखा कि जो उसका घर है वो कैसा उसको दिखता है। Then the balloon flew up and the Gappu started going up in the sky and we can do this. As he went higher, he could see the things around his house. अब घर के अगल बगल की चीज़ें भी दिखना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि वो इतनी हाइट पे पहुंच गया है कि अब उसको चीज़ें कितनी छोटी दिख रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो घर इतने बड़े बड़े होते हैं वो उसको टॉप व्यू पे देखो कितना छोटा दिख रहा है, कितना छोटे में ये पूरा एरिया आ चुका है। उसने क्या क्या देखा, ही सी द पार्क, उसने पार्क देखा है, उसने गुरुद्वारा देखा है, उसने रेलवे लाइन देखी है, एक स्वीट शॉप देखी है, सुहासिनी कोई फ्रेंड है उसकी हाउस है वो देखा, एंड द बिग वाटर टैंक। इतनी सब चीज़ें उसको एक साथ दिख रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज व्यू। बेटा अब वो कहाँ पर है, टॉप व्यू, सबसे ऊपर है और ऊपर से चीज़ों को देख रहा है तो चीज़ें कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं। आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर यमी। उसको ये भी नहीं पता था कि एक स्वीट शॉप है क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसके व्यू से वो जो घर ही इतना बड़ा था, लेकिन जब वो उतना ऊपर उड़ के गया तब वो उसको न्यू व्यू दिखा और उस व्यू में वो देख पाया कि नहीं ये एक एरिया में स्वीट शॉप भी है। अब जब मैं नेक्स्ट नीचे उतर के आऊँगा तो मैं जाके उस स्वीट शॉप, ये स्वीट शॉप है, उस पर जाके मैं कुछ नाश्ता पानी भी खाना भी खाऊँगा। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स। अब आपको इमेजिन करना है कि आपकी क्लास कैसी दिखती होगी टॉप व्यू से। आपको चीज़ें इमेजिन करनी है कि जो टेबल है जब मैं साइड से देखता हूँ तो कैसे दिखती है, जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगी, और आपको वो एक ड्रॉ करना है। ब्लैक बोर्ड कैसा दिखता होगा, डोर्स कैसे दिखते होंगे, एक्सेट्रा। द बलून वेंट अप एंड अप। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। मतलब जो चीज़ें कभी भी वो शायद ना देख पाता वो अब एक टॉप व्यू पर जाकर एक बार में सब चीज़ों को देख ले रहा है। अगेन बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। अब उसकी पोजीशन क्या हो गई है, टॉप, सबसे ऊपर उड़ के चला गया है तो उसको चीज़ें दिखने लग गई हैं। वो इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। अब जो ट्रेन है वो कैसी दिख रही है, एक डिब्बे जैसी दिख रही है। भाई अगर आप ट्रेन की बात करें तो जैसे अगर हम ट्रेन की बात करें तो भाई एक ड्राइंग बना के देखते हैं। लाइक दिस इज़ अ ट्रेन, this is a train. The drawing is not that much good, just adjust it something like whatsoever. It is a, suppose it is a train. Here these are the windows on it and this is your engine, something like this. Now you can see बेटा कि अगर आप इसको देखो तो साइड व्यू कैसा दिख रहा है कि आपको सिर्फ क्या दिखता है, साइड में खिड़कियाँ दिखती हैं, आपको पहिए दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बीच में इनके जो इंटरलॉकिंग होती है वो दिखता है। बट अगर हम इसी ट्रेन की क्या बात करें, टॉप व्यू देखें, ये कौन सा व्यू है बेटा, साइड व्यू, क्योंकि आप इसको कहाँ से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो। बट अगर आप इसी को कहाँ देखना स्टार्ट कर दो, आप देखना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ व्हाट, फ्रॉम द टॉप वन से देखना स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, तो भैया आप ज़रा ध्यान से देखो, टॉप से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो कैसे लगेगी, तो कुछ ट्रेन आपको सिर्फ ऐसी दिखने वाली है, समथिंग लाइक दिस। ये क्या होते हैं, ऊपर उसके कुछ कैरियर से होते हैं, आप उस कैरियर देख पाओगे, दैट्स इट, और उसमें आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो ये कैसा हो गया बेटा, इसका साइड व्यू है। बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टॉप व्यू। केवल क्या दिख रहा है, जैसे कोई बॉक्स रखे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या लगता है जैसे कोई बॉक्स रखे हैं। दिस इज साइड व्यू, द ट्रेन साइड व्यू, एंड दिस इज द ट्रेन्स टॉप व्यू। नाउ coming here again, these car and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. इतना ऊपर है कि उसको कार, बस
खिलौने जैसे दिख रही हैं और लोग चींटियों जैसे दिख रहे हैं। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट द बैलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। अब जैसे ही उसका गुब्बारा फटा वो नीचे आने लगा, जैसे ही नीचे आने लगा तो जो चीज़ें उसको चींटी जैसी खिलौने जैसी दिख रही थी वो अब बड़ी होने लग गई। क्यों? क्योंकि बेटा अब उसका जो व्यू है वो डिफरेंट हो रहा है और डिस्टेंस भी डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर अब आपको क्या दिखाया गया है बेटा? डिस्टेंस। जैसे ही आपका डिस्टेंस किसी चीज़ से दूर होने लग जाता है तो चीज़ों के बेटा शेप और साइज़ में डिफरेंस आने लग जाता है। शेप में बल्कि नहीं बोलेंगे, मेनली साइज़ में डिफरेंस आता है। किसी भी चीज़ को आप पास से देखोगे तो वो आपको बड़ी दिखती है, जैसे ही आप उससे दूर हो जाते हो तो वो आपको छोटी दिखती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी आपको देखो ये पेन एक दिख रहा होगा, कितना बड़ा पेन दिख रहा होगा, रियल में क्या ये इतना बड़ा है? नहीं। अब जैसे 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 देखो ये दूर गया दूर गया दूर गया तो ऑटोमेटिकली कैसा हो गया? छोटा हो गया। जिस चीज़ को आप पास से देखेंगे तो वो आपको बड़ी दिखेगी, जैसे ही वो दूर गई वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसी तरीके से जैसे ही गप्पू बेटा नीचे कूद के आने लगा, उसका जो फट गया गुब्बारा, तो वो चीज़ें जो उसको छोटी छोटी चींटी जैसी दिख रही थी वो कैसी होने लग गई? बड़ी दिखने लग गई। गप्पू गिरा है, धप। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। वो कहाँ गिरा है? रेलवे ट्रैक पे गिरा है, पटरियों पे गिरा। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मॉन्टी हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर ट्रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। मतलब एक कोई कैट होगी डेफिनेटली, मॉन्टी, जो चूहों को खाने के लिए भागती होगी, उनसे भागने लगा। व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक लाइक दिस। जब गप्पू ऊपर से रेलवे ट्रैक को देख रहा था तो देखो उसको रेलवे ट्रैक कैसी दिख रही थी? ऐसे दिख रहा था, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये मेन होती है और बीच में जो इसके ये जो पटरे से लगे होते हैं ताकि ये इसको बांध के रख सके, तो वो उसको ऐसे दिख रहा था। लेकिन अब आगे क्या होगा? जब वो उसको नीचे उतरा तो देखिए उसको अब जो रेलवे ट्रैक है वो कैसा दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एज वेल एज द एंगल। अभी वो टॉप व्यू था, अब वो कहाँ पर आ जाएगा? फ्रंट व्यू, क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं देख रहा होगा, इसको कहाँ से देख रहा होगा? इधर खड़ा होकर देख रहा होगा। तो जो व्यू है वो देखो भाई कैसा है? डिफरेंट हो गया है। बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। ओह, things look so different when you look at them from on the top and from the side। जब आप चीज़ों को ऊपर से देखते हो तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, साइड से देखते हो तो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ देखो, आपने साइड से देखा तो ट्रेन ऐसी दिख रही थी, ऊपर से देखा तो ट्रेन सिर्फ एक 3 डिब्बे रखे हुए दिख रहे थे। रेलवे ट्रैक ऐसे दिख रहा था, लेकिन जब साइड से देखा तो देखो ऐसे दिख रहा था। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्टेंस वाई थिंग एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एट द एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। हमको यहाँ पर अब ये बात करनी है बेटा, वही जो मैं बता चुका हूँ कि हमको जो चीज़ें पास में हैं वो बड़ी दिख रही हैं, लेकिन दूर हो जाती हैं तो वो छोटी क्यों दिखती हैं? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। हमारा जो बेटा आई व्यू है, जो हमारी आंखें हैं, उनकी भी बेटा क्या है? एक चीज़ तो देखने की एक डिस्टेंस है। जब तक हमारा डिस्टेंस पास होता है चीज़ें हमें यहाँ पे देखो बड़ी दिख रही हैं। जैसे दूर होता गया तो देखो कैसे पटरी लग रहा है कि छोटी हो गई क्या? लेकिन रियल में पटरी छोटी नहीं हुई है, पटरी उतनी ही बड़ी है। बट हमारा व्यू ऐसा है, हमारी आई की डिस्टेंस देखने की इतना ताकत है कि हमें पास की चीज़ बड़ी और दूर की चीज़ छोटी। सेम चीज़ यहाँ देखो, ये कैंडल बड़ी दिख रही हैं और जो लास्ट में कैंडल है देखो वो कैसे दिख रही हैं? छोटी दिख रही हैं, बिकॉज ऑफ आवर व्यू। डिस्टेंस बहुत मैटर करता है किसी चीज़ को देखने में। नेक्स्ट, मैच 2 व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। आपको सेम पोज को आपको मैच करना है। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज। एक कोई गर्ल है वो योगा कर रही है। ओनली वन ऑफ दोज फोटो बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज। मेक मार्क इट। अब आपको क्या बोला गया? आपको मार्क करना है जो बिल्कुल सही योगा पोज है। तो जब आप बेटा इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो ये योगा पोज है इसको आप ध्यान से देखिए। तो देखो भाई, जो ये गर्ल है वो योगा कर रही है, आपको दोनों चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, इसकी एल्बो को भी देखना है, एज वेल एज बेटा जो इसके पैर है इसको भी देखना है। तो जब आप बहुत ध्यान से देखोगे, थोड़ा इमेजिनेटिव पावर को आप इंक्रीज़ करोगे और ख़ुद सोचोगे कि अगर कोई योगा कर रही है लड़की और आप उसको व्यू देखो तो इनमें सबसे परफेक्ट कौन है? आप एल्बो देखेंगे, फेस देखेंगे और पैरों को भी देखेंगे। देन यू विल फाइंड कि एक्चुअल में द फर्स्ट फोटो, दिस फोटो इज़ द रियल थिंग। ये चीज़ बेटा बिल्कुल करेक्ट है, यही रियल पोज है। बाकी जो ये 3 पोज हैं ये डिफरेंट पोज हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो, एल्बो भी देखिएगा बेटा, फेस भी देखिएगा, आप नीचे के पैर भी देखिएगा, तब आपको रियल थिंग समझ में आएगी कि हाँ कौन सा पोज सही है। और एज वेल एज आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर तो मैट ही डिफरेंट हो गई है। तो जब मैट ही डिफरेंट हो गई तो बात ही ख़त्म हो गई। तो बच्चे सिर्फ 2 ध्यान से देखना, देन यू विल फाइंड द फर्स्ट फोटो इज़ द करेक्ट
pose. Now just coming to the next thing, here you can see now these are the two different views of the same bowl. बेटा देखो ये बर्तन है, बर्तन के डिफरेंट व्यू हैं। जैसे ये देखो मेरे पास भी एक कटोरी है। अब आप देखोगे यहाँ से देखा आपने तो आपको कैसी दिख रही है। जब आपने इसको इधर से देखना स्टार्ट किया तो देखो शेप डिफरेंट हो गई, इधर से देखना स्टार्ट किया तो उसका शेप डिफरेंट हो गया। जब आपने इसको पास किया तो बड़ी दिखने लग गई, दूर किया छोटी दिखने लग गई। तो यही शो करना चाह रहा है कि बर्तन एक है बट इसका व्यू डिफरेंट है। जैसे ही आपने व्यू चेंज किया, अपना एंगल चेंज किया, देखने का तरीका बदला, ये चीज़ भी आपको बदली दिखती है। देखो यहाँ से कैसी दिख रही है, यहाँ से कैसी दिख रही है और यहाँ से कैसी दिख रही है। बिकॉज हमने क्या चीज़ किया, ये फ्रंट व्यू था, ये ऊपर का व्यू है, ये साइड का व्यू है और ये नीचे का व्यू है। तो व्यू चेंज, चीज़ों की शेप को भी हम चेंज देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 बॉल्स दिए गए हैं जिसमें टॉप व्यू है और नीचे का व्यू दिया गया है, अप साइड भी दिया गया है। आपको देखना है और एक्सपीरियंस करना है। Now draw the lines to match the side view of the and with the top view of this. अब देखो भाई एक पाइप है और एक फनल है। फनल, ये फनल है और ये बेटा एक पाइप है। अब आपको देखना है कि कौन किसका व्यू है। तो ऑब्वियसली बेटा ये पाइप वाला देखो, ये देखो पाइप के संग ये एक पाइप दिख रहा है और ये पाइप का व्यू दिख रहा है, ये साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। आप फनल को देखोगे, ये इसको फनल को हम हिंदी में पीपनी बोल देते हैं, मतलब जिसमें आप तेल भरने के लिए ये चीज़ देखते होगे, तेल भरने के काम में आता है। तो ये किसका, फनल का व्यू है और ये भी किसका व्यू है, फनल का व्यू है। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट। आपको एक शू देखिए और इसके डिफरेंट मतलब साइड से, टॉप से और फ्रंट से आप खुद ट्राई करिए कि अगर आप एक शू का ड्राइंग बनाएंगे तो, पिक्चर बनाएंगे तो कैसी वो चीज़ दिखती है। नेक्स्ट, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। अब ये यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करने वाली आ रही हैं। क्या चीज़ें, इधर ध्यान से देखते हैं। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ध्यान से देखना है और आंसर देना है इनका। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब ये रही स्वीट शॉप। अब देखो भाई इसमें पहले गेट है कहाँ कहाँ, तो आप देख सकते हो गेट पे बेटा ABCD लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ A दिख रहा है आपको, गेट A। देन आपको क्या दिख रहा होगा, गेट B। देन आपको ये दिख रहा है गेट C और ये दिख रहा है आपको क्या, गेट D। अब आपको इसको देखते हुए आंसर देना है। ये देखो भाई स्वीट शॉप है, कैसे पहचाना आपने, देखो यहाँ पे लड्डू वड्डू आपको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिए जरा आपको, तो आपको कुछ लड्डू से कुछ येलो ब्राउन चीज़ें दिख रही होंगी, लड्डू और रसगुल्ले। तो आपने उसको देख के पहचाना कि ये एक स्वीट शॉप है। तो ये बोल रहा है कि ये स्वीट शॉप से सबसे पास में, नियरेस्ट मतलब सबसे पास में कौन सा गेट है, ABCD। ऑब्वियसली कौन सा गेट बेटा पास में है, A वाला पास में है। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। गप्पू का जो बेटा घर था, जब वो उड़ के यहाँ से निकला और रोड पे पार्क के पास में आया, तो गप्पू का घर कौन सा है, ये गप्पू का घर है। तो गप्पू के घर के पास सबसे पास में कौन सा गेट है, तो भैया कौन सा गेट है भैया, देखो जरा, C की D या B, तो C सबसे पास में है। देन इफ़ यू एंटर फ्रॉम अ गेट B, अब आपको बेटा कहाँ से एंट्री लेनी है, इस गेट B से एंट्री लेनी है। मतलब आपको ऐसे घुसना है, ध्यान देना, ऐसे घुसना है आपको गेट के अंदर। जैसे ही आप घुसे, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर। जो ये ग्रीन बेंच आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये ग्रीन बेंच ये आपके किधर होगा, राइट में, लेफ्ट में या फ्रंट में। तो बेटा जो राइट साइड होता है, दिस इज़ योर राइट साइड, इसको हम राइट साइड कहते हैं। जो इधर होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं। तो आप देखो ध्यान से, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो इधर पे बेंच हैं, आप सीधे सीधे ऐसे घुसे थे, तो मतलब ये बेंच आपके किधर पर हैं, ऑन योर लेफ्ट साइड। When सुहासिनी entered the park, the flower bed was to her right. अब जब सुहासिनी घुसी है तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड में है। अब ध्यान से देखो, पहले फ्लावर बेड कहाँ है बेटा, तो दिस इज़ द फ्लावर बेड, ये दिया हुआ है फ्लावर बेड मतलब फूलों का गार्डन, वो आपको दिया गया है। ये सुहासिनी घुसी बेटा किधर साइड से है, जहाँ से भी घुसी है, लेकिन जो ये फ्लावर बेड है ये उसके राइट साइड में आता है। अब ये बताओ कि वो किस गेट से घुसी है, तो भाई देखो ये फ्लावर बेड 2 गेट के पास पड़ता है, एक D के पास पड़ रहा है और A के पास पड़ रहा है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। देखो भाई जब वो इधर से घुसी, मतलब इधर से घुसी, ऐसे घुसी,
तो ये जब वो कोई भी इधर से घुसा तो आप सोचो आप इधर से घुस रहे हो, जब इधर से घुस रहे हो तो डेफिनेटली ये साइड क्या हो जाएगी उसकी, राइट हो जाएगी, और ये साइड कौन सी हो जाएगी उसकी, लेफ़्ट। मतलब अब देखो भाई ज़रा ध्यान से, इधर घुसा, ये वाली लेफ़्ट है, ये वाली राइट है, तो डेफिनेटली आप ध्यान से देखोगे क्या कि जो फ्लावर बेड है वो उसके कहाँ पड़ रहा है, लेफ़्ट में पड़ रहा है। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो मतलब गेट ए कैंसिल आउट। बात करते हैं गेट डी की। अब जब कोई इधर से घुस रहा है तो ध्यान से देखिए ज़रा फिर से एक बार, आप इधर से घुसे हैं, कैसे घुसे हो, ऐसे घुसे हो। जब भी हम ऐसे घुसेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, खुद को आप सोचो कि आप ऐसे घुस रहे हो। जब आप ऐसे घुस रहे होगे तो सोचो ये साइड आपकी बेटा कैसी हो जाएगी, ये आपकी राइट हो जाएगी, और ये वाली आपकी बेटा लेफ़्ट हो जाएगी। जब हम नीचे से घुसेंगे, इधर से ऐसे घुसेंगे, तो ये हमारा राइट हो जाता है और ये हमारा लेफ़्ट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तब ये आपकी राइट साइड है, तब ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ऊपर से घुसोगे तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आपका व्यू बदल गया। तब ये राइट हो जाता है और ये लेफ़्ट हो जाता है। खुद को खड़ा करके अब बेटा आप सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है, बट जब उधर से आएंगे तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। तो ध्यान से देखो, डी में घुसे, किधर से घुसे हो भाई, ध्यान से देखा आपने, इधर से घुसे, दैट मीन्स ये इसका राइट था। तो डेफिनेटली सुहासिनी जो है बेटा वो किधर से घुसी होगी, गेट नंबर डी से घुसे होगी, तो उसको ये जो फ्लावर बेड है वो राइट साइड में दिख रहा होगा। विच ऑफ दिस इज़ द नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अब आप कहाँ से घुसे हो भैया, गेट सी से घुस गए हो। गेट सी से जब आप घुसे हो तो आपको ये देखना है कि आपके सबसे नियरेस्ट क्या पड़ रहा है। कुछ बेटा ये देखो ध्यान से, दिस इज़ वॉट। अब आपको ऑप्शन दिए, पहले देखते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। फ्लावर बेड, दिस इज़ द फ्लावर बेड। ग्रीन बेंच, दिस इज़ द ग्रीन बेंच। एंड सीसॉ, सीसॉ बेटा ये बना। अब सीसॉ होता क्या है, तो ज़रा फटाक से पहले सीसॉ देख लो। ये है सीसॉ। क्या है सीसॉ, ये बेटा एक गेम है जो आप खेलते हो, पार्क्स में लगा होता है। दो लोग, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है। जो भारी होता है वो नीचे हो जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज सीसॉ, इसको हम सीसॉ कहते हैं। तो ये देखो भाई ध्यान से, इधर सीसॉ बना हुआ है। तो जब आप गेट नंबर सी से घुसे तो सबसे पास में कौन होने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट नहीं, फ्लावर बेड नहीं, ग्रीन बेंच नहीं, कौन सी वाली, दिस इज सीसॉ। तो सबसे पास में क्या होने वाला है, दैट इज सीसॉ। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ ऑन द फोन Ismail told Srijata the route to his house. From her house the route map is shown here. अब भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें हाई इंटेलेक्चुअल लेवल से सोचना है, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर। आपको बेटा डायरेक्शन की बात की गई है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, कहाँ मुड़ना है। जैसे आपसे कोई रास्ते में मिल गया उसने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपका स्कूल किधर पड़ता है, तो क्या बोलोगे, यहाँ से जाना, वहाँ एक चौराहा पड़ेगा, फिर उस चौराहे से राइट लीजिएगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो एक सीधी रोड पड़ती है, फिर आप उससे लेफ़्ट लीजिएगा, फिर एक चौराहा आएगा उसमें आप राइट टर्न लीजिएगा। ये क्या बता रहे हैं आप, इसको डायरेक्शंस बता रहे हैं। अगर आप अपनी तरीके से खड़े होकर बताएंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन होगा, कोई और कहीं से बताएगा तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो वहीं समझाने की कोशिश की गई है कि इस्माइल एक लड़का है, उसने सृजता को अपने घर का रास्ता बताया है, तो क्या उसने कुछ गलत किया है, गलत किया है तो यू हैव टू करेक्ट हर। दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड सृजता। अब देखो भाई पहले सृजता कहाँ है और का घर कहाँ है और इस्माइल का घर कहाँ है। ये रहा भाई सृजता का घर, ये रहा इस्माइल का घर। अब जरा हम खुद ड्रॉ करते हैं अपने, एक बार हम डायरेक्शन बनाते हैं कि क्या वो सही बता रहा है। अब पहली चीज़, फ्रॉम योर हाउस मतलब कहाँ से, सृजता के हाउस से। तो भाई देखो ये बना है सृजता का हाउस सपोज, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सृजता के हाउस में फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये रहा मिल्क बूथ, दिख रहा है आपको मिल्क बूथ, मतलब वो कहाँ पहुँच गया, वो सीधे सीधे मिल्क बूथ पहुँच गई। मतलब कुछ नहीं करना, पहले उसने एक सीधे चली होगी, राइट टर्न लिया होगा और कहाँ पहुँच गई, मिल्क बूथ पे पहुँच गई, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसने बोला फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। जो सेकेंड क्रॉसिंग आएगी, सेकेंड क्रॉसिंग, क्रॉस मतलब दिस इज़ क्रॉस, जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, दिस इज़ क्रॉस, इसे क्रॉसिंग कहते हैं। सेकेंड क्रॉसिंग जो आएगी, मतलब अब ये फ़ोन बूथ पे मिल्क बूथ पे खड़ी है, सॉरी। अब सेकेंड क्रॉसिंग मतलब एक क्रॉसिंग ये है, अगली क्रॉसिंग ये है, दो क्रॉसिंग। तो सेकेंड क्रॉसिंग मतलब इधर पे पहुँच गई है वो। सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, सेकेंड क्रॉसिंग से क्या लेना है उसको, एक राइट टर्न लेना है। तो उसने क्या किया भाई, राइट टर्न ले लिया। देन
एंड गो ओवर द ब्रिज, फिर उसको एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज को पार करना है, मतलब उसने डायरेक्शन बिल्कुल अभी तक सही बताया है। आगे चलती गई, ब्रिज मिल गया उसको। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट, जैसे ही ब्रिज पास हो राइट टर्न लेना है। अब देखो भाई, फिर से आप इधर खड़े हो तो ये होगा राइट, ये वाला क्या हो जाएगा लेफ़्ट। तो जैसे ही वो राइट लेगी, बोला उसने कि टेक द फर्स्ट राइट, लेफ़्ट बोलना था बट उसने क्या बोल दिया, राइट बोल दिया। तो अब उसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई है, गलत हो गई है। यहाँ पर वो बच्ची आ गई, गलत जगह जाने लग गई वो। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, अब आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। अब बेचारी जब 100 मीटर क्या 2-4 किलोमीटर भी आ जाएगी, उसको कोई पार्क दिखने वाला नहीं है। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन, जब आप एक पार्क के पास से आओगे तो एक साइड लेन मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। देन माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन, उस रास्ते मतलब ये जो रास्ता था, ये रास्ता मिलेगा और पहला घर मेरा है। बट अब उसने क्या कर दिया गलती, बोलना था लेफ़्ट बोल दिया राइट। तो बेचारी वो कहाँ पहुँच गई, किसी और ही दुनिया में पहुँच गई है वो। तो क्या करेक्शन है, मतलब उसको राइट टर्न की जगह बेटा क्या बोलना चाहिए था, लेफ्ट टर्न बोलना चाहिए था, तब वो बिल्कुल सही जाती। नाउ व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम, यू हैव कंप्लीटेड दिस। डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर, क्या गलत हुआ, बिल्कुल स्माइल गलत बता गया। कैन यू करेक्ट इट, तो हमें क्या करेक्ट करना है बेटा, ब्रिज पार करने के बाद जैसे ही उसने बोला फर्स्ट राइट टर्न, आपको यहाँ पे बेटा क्या करना है, लेफ़्ट करना है, राइट टर्न नहीं करना। क्या करना है आपको, लेफ़्ट टर्न करना है। देन डायरेक्शन सेम हो जाएगी और बिल्कुल सही हो जाएगी। शो वेयर शिल्पा विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, अगर वो उसको बताता तो वो कहीं यहाँ चली जाती और वो शायद इधर कहीं मुड़ जाती या कहीं इधर ही मुड़ सकती थी। वो यहाँ पर क्या हो जाती, कन्फ्यूज़ हो जाती, यहाँ पर खो जाती। राइट द डायरेक्शन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू सृजिता's हाउस। अब आपको अभी डायरेक्शन आपने क्या देखी, सृजिता से स्माइल, अब आपको क्या लिखना है, स्माइल से सृजिता। सोचिएगा क्या डायरेक्शंस होंगी और अपने आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा या क्या डायरेक्शंस आपने पाए। तो दिस इज़ द सीसॉ, वी हैव सीन दिस, द चैप्टर इज़ ऑलरेडी ओवर। बेटा इस चैप्टर में फिर से बात व्यू बताया गया है, किसी चीज़ को आप जब देखते हो तो उसका व्यू कैसा होता है। अगेन ये एक कप है, आपने देखा इधर से व्यू डिफरेंट है, व्यू डिफरेंट है, व्यू डिफरेंट है, पास में आए बड़ा हो गया, दूर चले गए तो छोटा हो गया। चैप्टर बताना चाहता था ओनली आपको क्या बेटा, डायरेक्शंस, एंगल और आप किधर से चीज़ों को देखते हो तो उनका व्यू कैसा होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।